So Rasulullah sallallahu sent a message for nikah to Sayyida Sauda radiallahu anha, a woman living in his time, who was a widow and had 5 children. आप अलैहिस्सलाम ने शफ़क़त फरमाई कि ये एक औरत है, कुरैश है, रिश्तेदार यानी उनके ख़ानदान से है, तो उनको पैगाम दिया, ने कहा कि अब इसके 5 बच्चे हैं, चलो इसकी भी मदद हो जाएगी। अब देखें कितनी खुशकिस्मती है उस औरत की। हाउ अ लकी दैट वुमन कि नबी अलैहिस्सलाम खुद किसी को निकाह का पैगाम भेजें। That he sallallahu alaihi wasallam himself sent a message of nikah, that I can take into custody all and look after all the children and yourself. कोई मसला होगा, meaning this issue might have come up that there is no solution, there is no provider, and it was the family of the Prophet ﷺ, a tribal family, and no one's looking after that woman, and there are many reasons. उसने कहा कि मुझे एक परेशानी है, there is one thing which is stopping me to accept this proposal. कौन proposal दे रहा है? The Prophet of Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And she said that I have one issue, one problem. आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, तुम्हें मुझसे कौन सी बात तुम्हें रोक रही, क्या बात है? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे आप सारी मखलूक से ज़्यादा मुझे पसंद हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, that you are the messenger of Allah, I like you, love you more than anything in the creation. There is nothing personal, but one thing is your adab, your respect and your convenience. You are looking after me, you have proposed so that to give me provisions, honor of being one of the mother of believers and looking after my children and myself. But due to the love and honor and adab which I have, I fear, मुझे डर है इस चीज़ का, मैं आपकी सबसे ज़्यादा इज्जत करती हूँ, और ये बच्चे रात दिन आपके सर पर खड़े होकर आपको तंग ना करें, शोर ना करें, तंग ना करें, ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। इमेजिन, इतना बड़ा मौका मिल रहा हो तो कौन ऐसी चीज़ का ख्याल करता है। लेकिन उस औरत का, उस सहाबिया के अदब का अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी सादत के खामिन नहीं है कि भाई एक रिज़्क़ का भी वसीला बन रहा है और एक नबी से निकाह का मौका, जो नबी अलैहिस्सलाम खुद पैगाम दे रहे हैं, और वो फिर भी इतना अदब करती है नबी अलैहिस्सलाम का, इतनी इज़्ज़त इकराम है उसके दिल में। वो कह रही है, मैं बीवी नहीं बल्कि मैं वो अदब ना कर सकूँ, मेरे बच्चे वो अदब ना कर सकें आपका, या आपको तंग करें, ये बात से मुझे ख़तरा है, ये बात डर, मैं और तो कोई नहीं है। So a person can imagine what type of love, what type of care and what type of actually value she gave Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And she is negating such a great honor to be the wife of the Prophet Islam, mother of the believer. For what? She might not live up to actually the standard, or her children might. And Rasulullah obviously knew her children are children, so he said, I don't mind at all. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके अलावा कोई और बात तो नहीं? He said, beside this, is there something else? Sayyida Sauda radiallahu anha said, Wallahi, by Allah, there is nothing else, only it is your adab and respect and honor and your convenience. Otherwise, I would like husband, I would like actually someone to provide me, I would like to someone look after. But because you are the messenger of Allah, you are the Nabi of Allah,
I fear they might not actually disturb you, or I might not actually be able to honor you as actually I should after becoming a wife. आप अलैहिस्सलाम ने फिर दुआएं दी उसको, फरमाया अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, यरहमकिल्लाह, फरमाया अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ये हमारी फैमिली ट्राइबल द कुरैश की औरतें, फरमाया कि बहुत ही इनमें सिफतें होती हैं, नेक औरतें हैं ये। बचपन में बच्चे के बारे में खौफ ज़दा रहती, फिक्र रहती है, और अपने शोहर और माल और मनाल और राम का ख्याल रखती हैं। He said that they do not hesitate to go out to work or for actually for doing household things, and they are very loyal to their husband and children. That for children's sake, she is actually not being actually married. And for love, and they are, and Prophet Islam said that they are very, very obedient wives, and also they protect and look after the comfort of the husband and protect his mom. So Prophet Islam ended this matter like this. She was speaking to him. So she said, in other words, she declined the proposal. और आप अलैहिस्सलाम ने उसको दुआएं दी हैं. He mentioned, he praised her and other women of Quraysh and left the matter at that. आपको इसलिए सुना रहा हूँ, हमारे भी हैं कि कई रिश्तों के लिए नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। ए जी फ़लाँ ने हमें रिश्ता नहीं दिया, हमारी बेइज्जती हो गई, फ़लाँ ने रिश्ता लिया नहीं, हमारी बेइज्जती हो गई, और फ़लाँ ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो so we make issues out of such normal things which everyone have right, because the Prophet Islam knew that Allah Azza wa Jal Subhanahu wa Ta'ala has given this right to everyone, कि हर एक को अल्लाह ने हक दिया हुआ है कि जहाँ उसका निकाह होना करे वो ना करे। ये औरत की, मर्द की, यानी उसकी मर्जी है। वो नबी अलैहि ने माइंड नहीं किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि मुझे पता है बच्चे हैं, मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं, मुझे सारा कुछ इल्म है। नहीं, आपने फरमाया इसकी नहीं, ये अदब कर रही है तो ठीक है, अल्लाह आपने दुआ देकर रुखसत कर दिया। हमारे यहाँ ज़िद्दी लोग कीड़े निकालेंगे, ये है वो है, ऐसा नहीं पता, मुझसे ज़्यादा किसको पता है, ये है, तुम्हारा कुछ ना रहे, ये हो वो हो, दुआएं देंगे, कुछ ना कुछ, बिजनेस कोई करना चाहता है, मैं अदर मैटर्स एक्चुअली। सो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल। ये हदीस शरीफ एक मिसाल है कि लोगों के साथ तल्लक़ात जो है वो किस बेस पे होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, और किस तरह अगर नहीं चलता तो कैसे एंड कैसे करना चाहिए। वी एंड इन, जिस तरह मैं कहता रहता हूँ कि हमारे लोग इस पे एक्सपर्ट हैं, झगड़ा शुरू कैसे करना है, बहस शुरू कैसे करनी है, मुसीबत और स्यापा डालना कैसे है, बस वो झगड़ा ख़त्म करने का नहीं पता, बहस ख़त्म करने का। देयर इज़ वे। आप देखें ना, कोई चीज़, एक आप चीज़ खोलते हैं, लाइट जलाई है तो स्विच का पता है बंद इसने कहाँ से होना है, आग जलाई है तो बंद कहाँ से होना है। सो अ पर्सन शुड नो बिफोर यू ओपन समथिंग, यू शुड नो हाउ टू क्लोज द मैटर एज वेल। सो वी बिगिन मैटर्स without knowing how to close and close them in a bad way, and then actually then. So this actually clarifies for us that actually how what Rasulullah ﷺ said, he also practiced, and many times this happened. And there is another narration as well that the Prophet Islam gave actually message of nikah, and the women or their relative declined, and he didn't mind at all. इसी तरह जो है मामलात होते हैं, फ़लाँ की दावत की है, किसी ने नहीं कबूल की, कोई वजह होगी, तो उसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। फ़लाँ जो है लैदा हो रहा है, फ़लाँ जो है कोई शादी हो रही है, मीनिंग बिकॉज वी रिलाई अपन पीपल सो मच and we do not rely upon Allah Jalla Majduhu, who we should be relying upon. तो फिर जो बंदों वो हमसे जुदा होते हैं, हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है। And if we have, like what one बुज़ुर्ग said to, उनकी बीवी ने उनसे कहा, अच्छा मैं ज़रा
कहा जब आप अकेले हैं मैं आ जाती हूँ। उन्होंने फरमाया मैं ना कभी अकेला हुआ हूँ, ना कभी मैंने अकेला महसूस किया है। मैं अपने रब के साथ होता हूँ, मैं तो अकेला नहीं होता। हमारा न हमने चूँकि वो तल्लक ही नहीं पैदा किया हुआ, तो इसलिए जो है हम बोर हो गए जी बैठ बैठ के। बोर इसीलिए हो गए ना भाई, अल्लाह से जो तल्लक, बोर कहाँ कैसे बंदा होगा, नबी अलैहिस्सलाम से तल्लक भी नहीं, तो मखलूक से इतना तल्लक है। तो वो फिर मखलूक जब थोड़ा बहुत अपना असल रंग दिखाती है, फिर चीखें निकलती हैं और अंदर से जो है वो दुखड़े निकलते हैं, और मतलब है कि यानी बड़े बड़े चीज़ें होती हैं। तो ये असल में उसकी सज़ा होती है कि बंदों को अहमियत ना दो, बल्कि पहले अल्लाह, पहले उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जो है बंदू का जितना भला कर सकता है पर्सन। सो द प्रॉफेट अलैहि सल्लम मेंशन टू सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अल्लाह पाक फरमाता है वुसअत पैदा करो, तुम पर वुसअत पैदा करूँगा, तंगी ना करो तुम पर, जो है वह तुम पर तंगी कर दूँगा, कता तल्लकी ना करो, तुम अल्लाह से कट जाओगे, किसी को दुख ना दो, अल्लाह तुम्हें दुखी कर देगा, किसी के खिलाफ साजिशें ना करो, तुम्हारी खिलाफ प्लान बनना शुरू हो गया, प्लान यू विल बी, देयर विल बी प्लान वर्किंग अगेंस्ट यू एक्चुअली। So it's very easy, in other words, to stay happy, firstly having a relationship with Allah Jalla Majduhu, and then actually just give goodness only, comfort only, ease only, and spend only, and you will see that no matter where you are living, where you are, outwardly you are living a luxurious life or not, inwardly you will have the peace as though you are living in Jannah. अंदर सुकून होगा, इत्मीनान होगा। आप पहाड़ पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, सोफ़े पे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, अंदर जो है वो सुकून इत्मीनान की दौलत होगी। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए इन बातों पर गौर करने की, नहीं अमल करने की भी। सही भाई हम ये कर गुज़रे ये चीज़ें, ताकि ये रुकावटें ख़त्म हों और हम भी कोई सुकून का सांस लेके इस दुनिया से चले जाएं। क्योंकि हमने कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ कि परेशान होकर ही मरना है और परेशान होकर ही जीना है, और अपने भी ज़िंदगी जहन्नम, दूसरों की भी जहन्नम। मतलब ये है कि मोमिन अपने भी दूसरों के लिए भी यहाँ भी जन्नत नुमा ज़िंदगी गुजारने की, बताने की। और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी यही थी, जन्नती ज़िंदगी थी आपकी इस दुनिया में भी।